हाँ ठीक है. So can you tell me here Ganga Prasad how to create the channel? The channel create using the make function. Okay. Can you tell me the syntax of the channel? How to create the channel? Yes, sir. Yes. Tell me what is First of all, create one variable, assign one variable, then use the make function, hmm. and then in make function we have give the chan and their data type. Okay. Then data type. Okay. So here we have. Can you tell me what kind of data we can send over the channel? Yes. Are you there? Inactive student, I will remove from this chat. Hello, sir. I'm Yeah. You have to respond quick, otherwise I will remove from this session. Okay. So that thing you should keep remember. Yeah. Sahil, what kind of data we can send over the channel? we can send integers, strings, float, boolean. And Deepak, what kind of data we can send over the channel? Son, and you take one more that continued something like this. Continued type of data. What is the conduit? It's a medium or path. It's a medium or path. Good. So here right now, Wasim, can you tell me what kind of data we can send over the channel? This is an interview question. Also, we can send the integer, boolean, string. Yes. Yes. Only this kind of data. Shital, Yes, sir. Sir, primitive and non-primitive. primitive and non-primitive. Okay, so guys, look at here. When we see the syntax of channel to using a make function, there is a keyword chan and along with followed by the data type. So data type means what? Any valid data type in a Golang. Okay, that kind of data you can send over the channel. It is very simple. Actually, we have the seen in the syntax of the making the channel. So here I mentioned the data type. It means what? Data type It means is what? Any kind of data, any kind of data type in a Golang, you can that kind of data send over the channel. So that thing you should keep remember. I just given an example of the using an integer, string, or boolean. It does not mean you can't say the other data type except that. Okay. So here, because it is not possible me to give the all kind of data type and show you the example, but here in a syntax I already mentioned there is a data type. So data type means what? Any data type. Understood? So this thing you should keep remember. Okay. So here Wasim and Shivangi here. Wasim, can you tell me types of channel? Yes. So there are Shivangi, how many types of channel is there? And one more thing, don't pronounce this pronounce it this is as a channel. Deepak is referring it is a channel, not a channel, it's a channel. Okay, yes, so sir. Channel. channel. Okay, So not. there are 7 types of channel. Yeah, yes. Tell me. So nil channel, Nil. close channel, Then receive
only channel Hmm. and send only channel, Hmm. unbuffered channel, buffered channel, and Yeah. Tell me. bidirectional. Yeah. Tell me what is a buffer channel? What is the unbuffered channel? Unbuffered channel is a channel that has no capacity to store value. Okay. ठीक है. Okay. Vyas, can you tell me what channel, what type of channel is the default in Golang? Unbuffered channel is default in Golang. Okay, good. So here, can you tell me how to create the unbuffered channel? It's a basic syntax. Yes, variable, then make function, create a variable, then assign a make function to it, and in argument, a chan keyword, and followed by its data type. So what happened, Shubhangi? What happened if I trying to send data over the closed channel? Shubhangi, are you there? Yes, sir. Okay. What will happen if I trying to send the data over the closed channel? No. Deepak, what will happen if I try to send data over the closed channel? Sahil? Sheetal? Runtime panic, sir. It will give the runtime panic. Ganga? Sir, if you are send data, this time give you panic error, but receive time it will be not giving panic error. What will give? What it will give at a while receiving? It will show Default the value. output, sir. Show the output. Yes. Yes. What will happen if I try to It will, yeah. yes, sir, yes, sir. What happen if I try to receive a data from the closed channel? What will happen? It will, it will return the zero, default default values, zero Correct, value of correct. the channel. Zero value. With zero value. Okay. So Ganga, here one mistake you have already. I told you guys again and again. When I going to ask you or anything, anybody going to ask you the question, only give the answer of that particular question. Don't go to the use answer of the another concept. Might be that concept they will ask next question. It means what? If you know that things, so your question one will be count as a correct. Okay, but you already is giving the answer of the next question along with this current question. So it means what? The next question of the interviewer will be something maybe different. Okay, so here you lost your points. So I already told you, whatever they ask you, whatever question they will ask you, just you have to told them the answer only particular that regarding that thing. Don't go anywhere or don't give the other explain the other thing. Might be they will ask the next question that is already you know. Understood? So here I ask you the regarding a uh, sending data over the closed channel, but you are giving answer also of a receiving channel also as well. So it means what? Might be next question will be the receive channel, and that question answer you know already. Okay, but at this time you already told them receiver channel regarding the receiver channel also. So at that time he will ask you the something different question. That may not be you that question might not be familiar with you. So here you lost your point.
Okay, so don't do this such kind of mistake there. ठीक है, let the interviewer ask you the question many times, many question, different question. Don't satisfy him within a same answer. Okay, just whatever he asks you, just give answer of that particular thing. ठीक है, so this thing you should keep remember. Okay. Okay, so guys, here now we have to go move forward. So now here, how unbuffer channel is work. Okay, now today we are going to learn how unbuffer channel is work. ठीक है, अब ये चैनल किस तरह से वर्क होता है. ठीक है, तो अभी हमने देखा है चैनल किस तरह से बनाते हैं और चैनल का डाटा रिसीव कैसे करते हैं, सेंड कैसे करते हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे चैनल का. ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चैनल बनाता हूँ. जैसे पहले मैं यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे फंक, यहाँ पे मेन ये फंक्शन है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चैनल बनाएंगे यहाँ पे. ठीक है, डेटा सेंड करने के लिए. तो जैसे कि ch वेरिएबल हमने चैनल बनाया यहाँ पे और मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एक चैनल बनाएंगे चैन, और मान लो कि इस चैनल के ऊपर हम इंटीजर डेटा सेंड करने वाले हैं. ठीक है, राइट नाउ अब यहाँ पे हम एक गो रूटीन बनाएंगे. गो का इस्तेमाल करके गो रूटीन हम बनाएंगे. यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है हमने और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस गो रूटीन के अंदर जो भी हमारा चैनल है उस चैनल के ऊपर डेटा सेंड करेंगे 40. ओके, और ये फंक्शन हमारा क्लोज और फंक्शन कॉल यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे मेन जो फंक्शन है यहाँ पे वैल्यू चैनल की रीड करना चाहेंगे हम, और यहाँ पे ऑपरेटर रिसीव ऑपरेटर फ्रॉम द चैनल एंड यहाँ पे fmt.println और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेंगे. ठीक है, तो गाइज ये है कोड चैनल का. ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है. ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, मतलब ये क्या है, इस फंक्शन को हमने क्या किया है, गो कीवर्ड का इस्तेमाल करके कॉल किया, तो ये क्या बन गया हमारा, गो रूटीन बन गया. दिस इज कॉल्ड एज ए गो रूटीन. ठीक है, तो अभी चलो यहाँ पे किस तरीके से वर्क होता है. लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7. ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन रन हो चुका है. सबसे पहले यहाँ पे चैनल क्रिएट हो चुका है. ठीक है, यहाँ से क्रिएट चैनल, चैनल बन चुका है अभी यहाँ पे. अब चैनल बनने के बाद जैसे भी गो कीवर्ड का लाइन नंबर 2 पे गो कीवर्ड का इस्तेमाल करके फंक्शन को कॉल किया गया है. ठीक है, और जैसे भी ये फंक्शन कॉल हो चुका है हमारा गो रूटीन, उसी टाइम लाइन नंबर 5 पे चला गया वो मेन फंक्शन थ्रेड. ठीक है, लाइन नंबर 5 पे चला गया. अब यहाँ पे उसने क्या किया है, ये ब्लॉक हो चुका है. यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है. क्यों? क्योंकि ये अभी क्या करेगा, वेट करेगा कि जो भी ch चैनल है इसके अंदर हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर सेंडर डेटा जब तक सेंड नहीं करता तब तक ये लाइन यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है, ये नीचे नहीं जाएगा. ठीक है, और सेम उसी टाइम जो हमारा लाइन नंबर 2 पे गो रूटीन कॉल हुआ था, उसके अंदर लाइन नंबर 3, ये जो लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 3 पे चैनल के अंदर हमने डेटा सेंड कर दिया है. ठीक है, तो चैनल के अंदर हमने डेटा सेंड कर दिया है. तो यहाँ पे जैसे भी डेटा सेंड कर दिया है हमने यहाँ पे, तो डायरेक्टली क्या होगा, डेटा ये सेंड होने के बाद ये ब्लॉक अनब्लॉक होगा, क्योंकि डेटा अभी सेंड हो चुका है इसके अंदर.
और जैसे भी सेंड हो चुका है तो ये 40 किसके अंदर चला जाएगा, वैल्यू के अंदर चला जाएगा, और फिर वो नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद वो प्रिंट करेगा वैल्यू, और आउटपुट आपको मिलेगा वैल्यू 40। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें, हेलो, हाँ यस, अगर सर हमने वैल्यू असाइन नहीं किया होता ये गो रूटीन के अंदर हाँ CHR, तो ब्लॉक हो हाँ, तो जाता यहाँ है। पे वैल्यू असाइन नहीं कर देते, यहाँ पे इनफाइनाइट ब्लॉक हो जाता, क्योंकि वो वेट करेगा कोई तो ओके भी सर। उसके अंदर वैल्यू रखे रीड करते वक्त, लेकिन यहाँ पे कोई रखने वाला है नहीं, तो ये इनफाइनाइटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यस सर। समझ में आया। त्या ऑपरेटरचं नाव काय सर? चैनल ऑपरेटर कल लिख के दिया था मैंने पीडीएफ में, पढ़ा है क्या नहीं? चॅनल ऑपरेटर हेच डायरेक्ट नाव आहे सर? हाँ यही बोला जाता है इसको, दूसरा क्या बोलेंगे इसको। एरो, एरो बोलो, फिर लेफ्ट डायरेक्शन एरो या राइट डायरेक्शन एरो ऐसा बोल सकते हैं, चैनल ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो चैनल ऑपरेटर इज अ बेटर वे। ठीक है, एनी डाउट? चलो इसके अंदर कोई डाउट है, चैनल किस तरीके से वर्क हो रहा है, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो अब, हॅलो हाँ सर. यस, सर चॅनल आपण फक्त शॉर्ट हँड व्हेरिएबलचाच यूज करून बनवू शकतो का? नॉर्मल व्हेरिएबलचा यूज करून नाही बनवू बन शकत ना? सकता है ना, यू कैन डू दैट बाय यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट हैंड इसलिए हम यूज़ करें कि नॉर्मल वेरिएबल में वैर लगाओ, डेटा टाइप लगाओ, इतना सारा झमेला करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें करना ही है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन यानी इनिशियलाइजेशन यूज करके। क्रिएट चैनल यूजिंग नॉन शॉर्ट हैंड वेरिएबल। ठीक है, तो आपको चैनल का है कि वैर ch चैन इंटीजर। ठीक है, ये इसका डेटा टाइप है। और यहाँ पे फिर आप यूज कर सकते हो ch इज इक्वल टू मेक चैन इंटीजर, और फिर रेस्ट ऑफ द कोड इज देयर। ठीक है, इस तरीके से। तो हियर दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। डाउट क्लियर शीतल? येस सर. Okay, ठीक है, so you can ask me the question, whatever question come into your mind, okay, and I like it. Okay, so I also want uh, the candidate should ask the question. Okay, and sometimes it should become the challenging for me, but in my entire coaching career I not get any challenging candidate that make me the inner trouble. Okay, no worry. So right now here I will another example I will take you. For example, I have created the channel and here is the go, or I am calling the function func. This is the func, and here is the channel ch, or I am sending a 50 value. ठीक है, और now I close this function, and finally here fmt println and complete, or another means, okay, no worry. So I'm going to create here like weight group. Okay, ch weight group. Here you need to try weight group. Where weight group and sync dot weight group, ठीक है। right now here weight group dot add one go routine, and I am going to start the one go routine here. Func weight group sync dot weight group, and defer weight group dot done. ठीक है, you know this code already. Right now I am using channel
and sending a 50 value to the channel. ठीक है, and right now the function call is here. So after that wait group, wait, calling the wait method, and finally fmt.println completion. Okay, so here func main ओके सो अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क होगा. अब सिनारियो 1, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10 एंड लाइन नंबर 11. ठीक है, सो दीज आर टोटल 11 लाइन ऑफ कोड. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो लाइन नंबर 1 हो चुका है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो चुका है. लाइन नंबर 2 में क्या हो चुका है, चैनल क्रिएटेड. चैनल यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है. लाइन नंबर 3 पे वेट ग्रुप क्रिएटेड, वेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है. लाइन नंबर 4 पे वेट ग्रुप के अंदर एक गो रूटीन ऐड किया है हमने, और लाइन नंबर 5 पे हमने गो रूटीन स्टार्ट किया है. ठीक है, अब जैसे भी गो रूटीन स्टार्ट हुआ है कि डायरेक्ट वो स्टार्ट जब भी होता है उसी टाइम इमीडिएटली क्या होगा, लाइन नंबर 9 रन होगा, क्योंकि मेन थ्रेड वेट नहीं करेगा गो रूटीन कंप्लीट होने तक, वो उसको स्टार्ट करके छोड़ेगा, फिर वो अपना काम करेगा. लाइन नंबर 9 पे यहाँ पे ये वेट करेगा, वेट करेगा, वेट टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ गो रूटीन, गो रूटीन. तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा, वेट करेगा. अब जैसे भी इसे वेट कर रहा है तो उसी टाइम ये जो गो रूटीन है यहाँ पे लाइन नंबर 6 में आ जाएगा. अब डेफर वेट रूटीन डन डेफर होगा, लेकिन कब, अब ये डन मेथड कब कॉल होगा, लास्ट में. ठीक है, उसके बाद वो लाइन नंबर 7 पे आ जाएगा. अब यहाँ पे ये हो जाएगा ब्लॉक. क्यों, क्योंकि चैनल के अंदर हमने 50 रखा है, लेकिन जब तक कोई इसको रीड नहीं करता है तब तक ये यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा. अब यहाँ पे ये कोई हमने सेंडर ने सेंड किया है, बट यहाँ पे रिसीवर है ही नहीं कोई रिसीव करने के लिए, तो ये वेट करेगा जब तक कोई उसको रिसीव नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे तो रिसीवर लिखा ही नहीं हमने कहीं पे, और ये होगा ब्लॉक इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट ब्लॉक. ये क्या होगा, इनफाइनाइट ब्लॉक होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट के लिए ब्लॉक होगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिसीव नहीं. क्योंकि चैनल का कॉन्सेप्ट यही है कि बफर चैनल, अनबफर चैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई सेंडर उस चैनल में डेटा सेंड कर रहा है, जब तक रिसीव नहीं करेगा तब तक सेंडर ब्लॉक हो जाएगा, और जब कोई उसको रिसीव कर रहा है जब तक सेंडर डेटा उसके अंदर नहीं भेजेगा तब तक रिसीवर ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है चैनल का, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये ब्लॉक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा दीपक, ये ब्लॉक खोलना है हमें, क्या करना पड़ेगा गंगा, इंटरव्यू में अगर आपको इस टाइप का सिनेरियो दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर रिसीवर देना पड़ेगा. कहाँ पे, या वेट ग्रुप के ऊपर. वेट ग्रुप के ऊपर, कौन सा वेट ग्रुप, ये यहाँ पे, यहाँ पे लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर के कहाँ पे, लाइन नंबर मैंने दिया है, कौन से लाइन नंबर के ऊपर क्या करना पड़ेगा बोलो, 8 के नीचे. 8 के नीचे देना पड़ेगा. ठीक है, तो 8 के नीचे हमें देना पड़ेगा. ओके, हाँ शीतल क्या करना पड़ेगा, सर आप एक बार फिर पूछेंगे क्या? अभी मुझे ये ब्लॉक होगा इनफाइनाइट. ठीक है, तो मुझे इनफाइनाइट ये ब्लॉक खोलना है, तो क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इस कोड के अंदर,
लाइन नंबर 10 पर क्या कर सकते हो? ओके, दीपक का कहना है कि 10 लाइन नंबर के नीचे हम करेंगे। हाँ, लाइन नंबर 10। गंगा बोलता है लाइन नंबर 8 के नीचे ना। ओके, हाँ, शीतल, शुभांगी, साहिल। So after line number 9, I think लाइन नंबर 9। you will add receiver. ओके, साहिल, You will लाइन use नंबर voltage 9। switch. हाँ, ठीक है। यस, व्यास। Sir, after line number 9, WG dot wait function. ओके, व्यास, लाइन नंबर 9। हाँ, शुभांगी, वसीम, 7. Sir, after the line number 9. शुभांगी, लाइन नंबर 7, आफ्टर द 7। एम आई राइट? शुभांगी, Yes, sir. आफ्टर द 7। हाँ सर. ओके, हाँ, वसीम, Sir, after the line number 9. लाइन नंबर 9। ठीक है। सो देखो, इसमें से करेक्ट है सिर्फ गंगा। ओके, बाकी सब मोह माया है। सब गंगा करेक्ट है। गुड गंगा, वेल डन। देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 9 के अगर नीचे लगाऊँ चैनल, जैसे वैल्यू लाइन नंबर 9 के नीचे मतलब लाइन नंबर 10 के ऊपर वैल्यू, और मैं यहाँ पे रीड करूँगा चैनल की वैल्यू CH की, तो यहाँ तक वेट ग्रुप यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है ना। जब तक डन मेथड कॉल नहीं होता ये, तब तक ये नीचे जाएगा ही नहीं ना। तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ना आपका, पहली बात। क्योंकि वेट जब तक ये डन मेथड कब कॉल होगा? जब तक इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ब्लॉक हो चुका है ना, तो ये डन मेथड कॉल ही नहीं होगा आपका। और डन नहीं कॉल होगा तो ये वेट के नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 10 आप काम नहीं करेगा यहाँ पे। अब रही बात यहाँ पे लाइन नंबर 10 जो है दीपक, अब दीपक ने बोला लाइन नंबर 10, तो वेट के नीचे जो भी आएगा वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे लाइन नंबर 9 वाले कौन है? हाँ, लाइन नंबर 9 के नीचे जो भी है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, 10 9। अब यहाँ पे 7 वाला जो है शुभांगी, 7 वाला, ठीक है। अब शुभांगी ने क्या किया है, एक नया मसला खड़ा कर दिया है शुभांगी ने। ओके, अब शुभांगी ने क्या किया है कि उसने चैनल के अंदर तो डेटा क्या किया है, सेंड किया है। ठीक है, लेकिन उसी के अंदर लाइन नंबर 7 बोल दिया, तो उसी के अंदर वैल्यू और ये जो डेटा है। नहीं सर, वो वैसा नहीं था, वो गलत हो गया, मुझे समझ में आया बाद में आया ना समझ में। लेकिन इस पे सोचने की बात है, शायद शुभांगी का भी काम कर सकता है, नो वरी, क्योंकि उसने जो अनजाने में किया है तो अनजाने में एक नया शोध लगा है यहाँ पे। यहाँ पर जो है वैल्यू, हम वैल्यू दे देंगे और इसी के अंदर चैनल को रीड करेंगे, तो हो गई ना बात यहाँ पे। तो सर वो आपने नीचे वेट सर हो गए, हो सकता है ना, क्योंकि देखो नहीं हो, नीचे आपने वेट दिया था ना। नहीं, ये जो लाइन नंबर 7 के नीचे आपने दिया है ना, तो लाइन 7 के नीचे अगर मैं रीड करूंगा वैल्यू और चैनल, मतलब यहाँ पे मैंने चैनल को डेटा सेंड किया है, और जब तक और रिसीव भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है ना, ये नीचे जाएगा कैसे? जाएगा नहीं नीचे, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक होने के बाद नीचे जाएगा कैसे? वो नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा ना वो, तो दिस विल आल्सो नॉट वर्क। गलत है शुभांगी। सर रिसीवर पर डेटा पहुंचला है ना। देखो यहाँ पे CH, देखो यहाँ पे सुनो आप, यहाँ वैल्यू CH, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही मैं सेंडर ने डेटा सेंड किया है चैनल में, यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है। कब तक? कोई रिसीवर रिसीव नहीं करेगा। तो जहाँ पे रिसीवर दूसरे थ्रेड में होना चाहिए, अब यहाँ पे नीचे तो कैसे जाएगा? वो ब्लॉक हो चुका है ना यहाँ पे। तो नीचे आप रीड नीचे कर रहे हो उसको, लेकिन वो नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि अगर उसको नीचे ही जाना था तो यहाँ पे ब्लॉक क्यों होता था? फिर नहीं होता था ना। यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है अभी, क्योंकि उसने डेटा सेंड किया, अभी कोई रिसीवर नहीं है उसको रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पे वो नीचे लाइन तक जाएगा नहीं और यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा वो। तो इसलिए हमें ये रिसीव करने के लिए किसी दूसरे गो रूटिंग में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा गो रूटिंग का इसके एग्जीक्यूशन से कोई संबंध नहीं रहता, वो अपना एग्जीक्यूशन खुद होता है उसका। अंडरस्टूड? तो मतलब सर सेंडर
और रिसीवर एक ही गो रूटीन में काम नहीं नहीं करता करेगा है। ना, कैसे करेगा? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, तो ब्लॉक होने के बाद ये नीचे जाएगा ही नहीं ना, कैसे जाएगा? नहीं जाएगा वो नीचे, जब तक इसको कोई रीड नहीं करेगा। लेकिन रीड करने वाला कोड आपने नीचे लिखा है, लेकिन नीचे तक वो पहुंचेगा ही नहीं ना। फिर इसको रीड करने वाला कोई दूसरा गो रूटीन होना चाहिए जो कि कंकरेंटली वर्क कर सके। तो इस वजह से ये एग्जांपल भी रॉन्ग होगा जो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ गंगा इज करेक्ट एक्चुअली, और एवरीबडी इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, इनफाइनाइट ब्लॉक जो लिखा था हमने। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये जो गंगा है 8 लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा, वैल्यू, और यहाँ पे रीड करना पड़ेगा चैनल की वैल्यू। और अभी यहाँ पे वेट ग्रुप डॉट वेट मेथड है, और उसके बाद fmt डॉट println और वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी मेरा लाइन नंबर 5 रन हुआ, गो रूटिंग स्टार्ट हो गया, स्टार्ट गो रूटिंग। अब इसका खुद का सेपरेट एग्जीक्यूशन है, इसका और मेन जो हमारा थ्रेड चल रहा है उसका कोई संबंध नहीं। जैसे गो रूटिंग स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली ये मेन थ्रेड 9 नंबर पे आ चुका है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कोई चैनल के अंदर डेटा सेंड करे। तब तक ये क्या करेगा, लाइन नंबर 6, 7 पे आ जाएगा, और चैनल के अंदर डेटा 50 चला गया। जैसे ही डेटा 50 चला गया, तो यहाँ का जो वेट कर रहा था ये वेट खुलेगा, और ये 50 वैल्यू चैनल का इसके अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही वैल्यू के अंदर चला गया, ठीक है 50, तो उसी टाइम ये इनफाइनाइट ब्लॉक ये खुल गया, क्योंकि डेटा रिसीव हो गया। और जैसे डेटा रिसीव होने के बाद ये फंक्शन क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज हो गया, डेफर ने कॉल कर दिया डन मेथड, और जैसे ही डन कॉल कर दिया, यहाँ पे वेट मेथड का ब्लॉक खत्म हो गया, अनब्लॉक हो गया। और जैसे ही अनब्लॉक हो गया, तो लास्ट वाला लाइन रन हो चुका है, println वैल्यू प्रिंट हो चुकी है आपकी कितनी, 50। अंडरस्टूड? इस तरीके से क्या होता है, आपका चैनल वर्क होता है, अनबफर्ड चैनल। यस सर। सर हॅलो आपण ते सीएच ला सर आपण जेव्हा ॲरोनं 50 असाइन करायलो ना, म्हणजे 50 त्याला द्यायलो, तेव्हा ते तिथे ब्लॉक होते, ते मला कळालं नाही सर। ब्लॉक होते मतलब क्या होता है, देखो अब देखो इसके अंदर मैं लाइन लिखता हूँ fmt डॉट println, डन। अब जैसे भी यहाँ पे आया, वो चैनल के अंदर उसने कितना भेजा, 50 भेजा। अब जब तक कोई इसको रीड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे हम ये रीड ऑपरेशन हो रहा है, मान लो कि ये रीड ऑपरेशन यहाँ पे हाई नहीं है, ये कोड यहाँ पे हाई नहीं है, तो चैनल को उसने डेटा सेंड कर दिया है। अब सेंड करने के यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक मतलब ये नीचे वाली लाइन नहीं रन करेगा, वो यहाँ पे स्टॉप हो गया, नीचे का कोड रन ही नहीं होगा उसका। कब तक ब्लॉक होगा, जब तक इसको कोई CH में से डेटा इस तरीके से नीचे कोई दूसरा गो रूटीन इसको रीड नहीं करेगा। तो हम अगर नीचे इसको रीड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे लाइन नंबर 9 है, ये जो CH के अंदर डेटा रखा था 50, इसने रीड कर दिया। तो जैसे भी ये डेटा रीड हो चुका, तो यहाँ से ब्लॉक खुल गया, और ये नीचे वाला लाइन उसने रन कर दिया। समझ गए? हाँ ब्लॉक हो रहा है यस म्हणजे सर। क्या हो रहा है कि वो आगे की लाइन नहीं रन करेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसी को ब्लॉक बोला जाता है। ओके सर, गॉट इट? हाँ, हेलो सर। यस यस यस। वो लास्ट टाइम अभी आपने इस एक्सप्लेनेशन दिया ना, 7th नंबर पे अगर हमने लिखा तो तब That's not able to hear you, not able to hear you, internet connection problem, yeah. Come again. हाँ सर, ये लास्ट टाइम अभी आपने बताया ना 7th नंबर पे, ये जो शुभंगी ने बताया, उसके अंदर फंक्शन के अंदर लिखा अगर रिसीवर, तो तब इंटरनेट कनेक्शन चला जाता, तो मुझे एक्सप्लेनेशन हाँ, समझ तो नहीं देखो आया। यहाँ पे, हाँ यहीं पे हमने रिसीवर लिखा, जैसे कि वैल्यू, ओके। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं चैनल के अंदर 50 भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू को रिसीव नहीं करेगा।
लेकिन रिसीव का तो कोड आपने नीचे लिखा है, लेकिन ये तो ब्लॉक ऊपर ही हुआ है, तो नीचे जाएगा कैसे? नहीं जाएगा ना। तो इसको रिसीव करने के लिए कोई बाहर का ही गो रूटीन का बंदा होना चाहिए जो उसको रिसीव Yes, करना sir. पड़ेगा। Yes. अंडरस्टूड? ठीक ठीक है। Yes. Yes. मेन थ्रेडेड वाला ही हाँ, वेट या करना दूसरा थ्रेडेड वाला होना चाहिए, जो कि ये थ्रेड तो ब्लॉक हो चुकी है, ये करंट थ्रेड अभी ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पे, ये आप रन नहीं करेगा ये, तो दूसरा थ्रेड साइमल्टेनियसली रन होने वाला, उसके अंदर अगर रीड ऑपरेशन हो गया, रिसीव ऑपरेशन, तो ये ब्लॉक खुलेगा ऑटोमेटिकली। दिस वन थोड़ा झमेला करता है ये टॉपिक। Got ये it, sir. टॉपिक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, ये नहीं, हर प्रोग्रामिंग में जो कॉन्करेंसी है ना, बहुत हेडेक देता है, बहुत हेडेक। ठीक है, तो मेरे को भी बहुत हेडेक होता था इसके अंदर। अभी मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत केयरफुली, वो भी विदाउट कंप्यूटर कोडिंग का पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरे लिए चैलेंज ये है कि ये मैंने जो आपको आउटपुट दिया है एज इट इज़ आना चाहिए कंप्यूटर में टाइप करने के बाद, नहीं आया तो फिर मेरा लेक्चर फेक हो गया। अंडरस्टूड? इतना बड़ा चैलेंज है अभी मेरे लिए। ओके, तो डोंट वरी, ये फेल नहीं होगा, मैंने बोला वैसे वर्क होगा। ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर पे तो करके आउटपुट हम दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जो पेपर वर्क पे हम प्रॉपर वे से अगर काम चीज़ें कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट मीन्स व्हाट देयर इज एक्यूरेसी इन योर प्रोग्रामिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, समझ में आया ये किस तरीके से लॉक ये चैनल वर्क होता है आपका? समझ में आया? Yes, सर sir. मेन फंक्शन में कैसा वर्क होता है हाँ हाँ, सर? विदाउट गिविंग गो रूटीन एनी, मेन हाँ विदाउट क्रिएटिंग एनी हाँ, फंक्शन, कैसा वर्क होता है मेन फंक्शन में? मतलब सर फंक्शन न क्रिएट करता सर मेन फंक्शन के अंदर। मतलब नॉट अंडरस्टँड। सर आपण इथं अनोनमस फंक्शन क्रिएट करायला होत ना मेन हाँ फंक्शन के मेन फंक्शनच्या हाँ, मध्ये, तर फक्त मेन फंक्शनच्या मध्येच आपण जर सेंडर आणि रिसीवर जर त्या हे केलं तो तर यहाँ पे देखो ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, अगर ये हमारा ओनली मेन फंक्शन है, फंक मेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चैनल बनाया ch मेक चैनल इंटीजर। अब मैं इसी चैनल के अंदर यहीं पे मैं क्या करूँगा, डेटा सेंड करूँगा 50, और इसी ये तो सिंगल थ्रेड है ना मेरा, ये तो अभी सिंगल थ्रेड है क्योंकि एक ही थ्रेड चल रहा है अभी मेरा, तो एक ही थ्रेड के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अब नीचे कौन सा भी कोड लिखो तो रन हो ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर काल रन करून पाहू लागलो, रनच होत नहीं होगा, नव्हता। कैसे होगा? ब्लॉक हो रहा है ना वो, वहाँ पे डेडलॉक में जा रहा है वो। समझ रहे? दैट्स द रीजन एक्चुअली नहीं रन होगा। यस सर। सर याला रिसीवर दिल्यावर भी होणार रिसीवर नाही दोगे, लेकिन वो रिसीवर कब रिसीव करेगा? अब मैंने यहाँ पे रिसीवर दे दिया, चलो डेट सर आपण जर डिफर दिला हाँ तर हाँ चालणार नाही? डिफरचा जर यूज करून हाँ आपण रिसीवर हाँ, दिला, रिकवर फंक्शन मैं यूज करून, डेफर कब रन होगा आपका? आपने डेफर भी लिया, चलो जब सर फंक्शन एंड होगा तब डेफर कॉल होगा, ठीक है। डेफर कॉल कब एग्जीक्यूट होता है हमारा? जब फंक्शन हमारा हाँ एग्जीक्यूट। सर, अब यहाँ पे ब्लॉक होने के बाद वो एग्जीक्यूट फंक्शन एंड हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे जब तक यहाँ पे नहीं जाएगा फंक्शन एंड कैसे होगा? तो थ्रेड ब्लॉक हो गई तुम्हारी, एक बार ब्लॉक हो गया तो नीचे का कौन सा ही कोड आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और फंक्शन बाहर भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? और बाहर नहीं निकलेगा तो डेफर कैसे कॉल होगा आपका? डेफर तो फंक्शन एंड होने के बाद कॉल होता है ना, रिटर्न के बाद। तो यस सर, जैसे भी आपका ये यहाँ तक आ गया आपका एग्जीक्यूशन, मतलब फंक्शन रिटर्न ऊपर, यहाँ पर एग्जीक्यूशन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, इसके आगे तो जा ही नहीं पा रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे अभी? तो सिंगल थ्रेड में आप नहीं कर सकते काम। तो चैनल का मतलब ये होता है कि डेफिनेशन ही क्या है, चैनल इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर गो रूटीन टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन डिफरेंट गो रूटीन। ये डेफिनेशन कहा था हमने, GR1 गो रूटीन 1 एंड गो रूटीन 2। अब यहाँ पे बात दो गो रूटीन के कम्युनिकेशन की आ रही है, तो हम एक ही गो रूटीन के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हाउ इज पॉसिबल? डेफिनेशन ही बता रही है आपको सबको, तो आप डेफिनेशन के आगे जा रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन में तो लिखा है ना कि दो गो रूटीन के बीच में या दो से मल्टीपल बीच में आपको कम्युनिकेशन करना है। तो फिर यहाँ पे आप कंसेप्ट तो एक ही गो रूटीन का यूज कर रहे हो, दो का कंसेप्ट आया नहीं यहाँ पे।
समझ रहे हो? तो यही बात होती है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ काम करेगी। खुद से कुछ भी करते नहीं बैठना है। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अभी हम ये हो गया हमारा चैनल, बफर चैनल हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, बफर चैनल का जो टाइप था वो टाइप आपका ख़त्म हो गया कि बफर चैनल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, समझ में आया ये बफर चैनल, अनबफर चैनल। अब हम देखेंगे बफर चैनल। ये गोरिटिन का कितना लेक्चर है ये अभी हमारा, गोरिटिन चैप्टर का 10 लेक्चर हो गए क्या हमारे? 10। हेलो सर, ये ना थ्योरी के ना उस दिन मैंने गलत बताया था। थ्योरी के 3 हुए थे, आपने फिर डायरेक्ट 6 लिखा, तो 4 5 और ये 6 या 7 लेक्चर है। 7 है क्या? ये 6 या 7 है। देखो आप किसको लेक्चर कितने हुए ये भी पता नहीं गोरिटिन के। नहीं, प्रैक्टिकल छोड़ के बोल रहा प्रैक्टिकल हूँ मैं। 2 5 2 7 और ये 8वां है ना, ये 8वां लेक्चर है। देखो 8 लेक्चर तक से वो एक बंदा आया था, वो बोल रहा था इंस्टीट्यूट के 8 दिन में रिएक्ट ख़त्म कर दिया उनका पूरा फ्रंट एंड 8 दिन में ख़त्म कर दिया। हमारा एक चैप्टर 8 दिन चल रहा है, स्लो चल रहा है। लेकिन मतलब नहीं है, क्योंकि ये फास्ट लेके भी कोई दिमाग के बाहर जाएगा। और डायरेक्ट मैं अगर प्रैक्टिकली दिखाता तो ये ध्यान में नहीं बैठता था आपके शायद, है ना? तो बफर चैनल, नहीं सर। बफर चैनल है। आप बफर चैनल का डेफिनेशन लिखो यहाँ पे। अब बफर्ड, हाँ हेलो बोलो। सर, 6 लेक्चर, ये 6 और एक प्रैक्टिकल हुआ है, 7 लेक्चर हुआ है। एक नहीं 2 प्रैक्टिकल हुए। एक लाइव लेक्चर लिया था, नहीं एक सर, लाइव एक लेक्चर लिया था प्रैक्टिकल का, दीपक ने मैसेज दिया था सर मुझे समझ में नहीं आया, याद है? और फिर एक प्रैक्टिकल आपका ये मैंने गो रूटीन का यहाँ पे करके दिखाया था। हाँ, वो याद है। वो 2 और बाकी के कैलकुलेट करो। 8 हुआ है फिर। थ्योरी लेक्चर 6 है। अब बफर्ड channel has fixed capacity allowing it to hold a specific number of value before blocking the sender। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनबफर चैनल में बफर का मीनिंग यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना है। बफर का मतलब इज अ टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, तो अनबफर चैनल मतलब ऐसा चैनल कि उसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, और बफर चैनल मतलब ऐसा चैनल कि उसके ऊपर कुछ स्टोरेज है। तो बफर चैनल जो होता है उसकी एक फिक्स कैपेसिटी आप डिफाइन कर सकते हो कि उसके अंदर कितने वैल्यू आप स्टोर करके रखना चाहते हो चैनल के अंदर। ठीक है, तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, बफर चैनल कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, sender can send multiple value to the channel without blocking until the buffer is full।
ठीक है, तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि बफर चैनल में क्या होता है कि सेंडर मल्टीपल वैल्यूज़ को सेंड करता है विदाउट ब्लॉकिंग। कब तक? जब तक बफर फुल नहीं होता। जब तक बफर फुल हो गया सेंटर ब्लॉक हो गया। अब अन बफर में ऐसा नहीं था, अन बफर में एक भी वैल्यू हम सेंड करें तो सेंटर ब्लॉक हो रहा है जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करेगा। लेकिन बफर में क्या होता है, आप मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर सेंड कर सकते हो, ब्लॉक नहीं होगा। जितनी कैपेसिटी उतनी, जैसे भी बफर फुल होगा वहाँ पे वो ब्लॉक होगा। ठीक है, आपको दिक्कत सिर्फ दो ही चीज़ों पे है, ब्लॉक कहाँ पे हो रहा है यही ध्यान में रखना है। सेंडिंग के वक्त और रिसीविंग के वक्त ब्लॉक कहाँ पे हो रहा है, यही चैनल का फंडा है। जहाँ पे ब्लॉक हो रहा है वो समझ में आया तो आप चैनल अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, एम आई राइट? Yes, sir. Receiver can receive values when they are available. In the buffer। ठीक है, अब रिसीवर क्या करेगा, वैल्यू रिसीव करेगा जब बफर के अंदर वैल्यू अवेलेबल है। ओके, रिसीवर विल ब्लॉक until receiver block when buffer is empty। तो रिसीवर क्या करेगा, जितनी वैल्यू बफर के अंदर है वो रीड करेगा, ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, जब बफर एम्प्टी होगा तो रिसीवर ब्लॉक हो जाएगा। और सेंडर ब्लॉक कब होगा, बफर चैनल में जब बफर फुल होगा तब सेंडर ब्लॉक होगा, रिसीवर जब बफर एम्प्टी होगा तब ब्लॉक होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, तो इसका बिहेवियर देखो, बिहेवियर नंबर 1, the sender is blocked only when the buffer is full। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बफर चैनल में सेंडर ब्लॉक कब होगा, जब बफर फुल होगा तब। ठीक है, एंड नंबर 2, the receiver is blocked only when the buffer is empty। ठीक है, तो रिसीवर कहाँ पे होगा, बफर एम्प्टी होगा। ठीक है, तब तो चलो अभी ये किस तरीके से अनबफर चैनल हम क्रिएट करेंगे। तो बफर चैनल, क्रिएट बफर चैनल। ठीक है, तो बफर चैनल हम क्रिएट करेंगे किस तरीके से, सिंटैक्स वेरिएबल और यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना है, सेम चैनल कीवर्ड यूज करना है, कौन से टाइप का डेटा उसकी सेंड करना है, और यहाँ पे बफर साइज। ठीक है, कितना बफर का साइज है, मतलब कितनी वैल्यू आप उसके अंदर सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बफर काउंट कितना, बफर काउंट नहीं, बफर साइज आएगा, काउंट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेयर देना है या फिर आप अंडरस्टैंड कर लोगे, बोलो। सर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे सर। ठीक है, चलो, इट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर चैनल। ठीक है, यहाँ पे मेक ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। अक्षर समझ रहा है ना मेरा हैंड राइटिंग?
नोट्स नोट्स हाँ पढ़ते सर तो Yes, दिक्कत sir. नहीं आता ना मेरे हैंड राइटिंग का फंक्शन? नहीं सर। ओके, No, sir. हैंडसम है ना हैंड राइटिंग? दैट क्रिएट Very good. Sexy, sir. that create channel. ठीक है, नंबर 3 chan integer, it is a channel of integer data. ठीक है, एंड नंबर 4 है बफर साइज. बफर साइज है यहाँ पे इट इज अ इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप यूज होता है. इट इज तुम्ही तिथे इंटीजर घेतलं म्हणजे इंटीजर डेटा हाँ टाइप यूज इथं करा. सॉरी गुड chan data type comma buffer size. थैंक यू शुभांगी, आपका एहसान हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे. chan data type, channel of specified data type. ठीक है, buffer size, it is a size of data to save data to store in a channel. ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है. अभी चलो इसका हम एग्जांपल ले लेंगे. हाँ, कितनी भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, आपको जितना चाहिए. ठीक है, ठीक. अब एग्जांपल में देखो, इसका एग्जांपल में अभी यहाँ पे ये जो चैनल है यहाँ पे मल्टी गो रूटीन की इसको ज़रूरत नहीं है. कैसे देखो, अब यहाँ पे सिंगल फंक मेन. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक चैनल बनाता हूँ ch चैनल. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे यहाँ पे, सो ch कोलन मेक फंक्शन, मैं चैनल बनाता हूँ ऑफ इंटीजर टाइप का, और मैं यहाँ पे 4 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ. ठीक है, सो हियर स्टोर 4 इंटीजर वैल्यू इनटू चैनल. ठीक है, यहाँ पे, और ये इस तरीके से क्या हुआ है, आपने चैनल क्रिएट किया है. ठीक है, तो अभी मैं ये लाइव एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेक फंक्शन है मेक, और यहाँ पे चैनल, और जैसे कि मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है कितनी, 4. तो ये हमने क्या किया है, चैनल बना लिया. ठीक है, अब जैसे भी हम चैनल के अंदर वैल्यू रखेंगे ch 10 ch 20. ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने चैनल के अंदर वैल्यू रखी है 10 और 20, मतलब ये मेरे चैनल की टोटल साइज कितनी है अभी, 1 2. ठीक है, ये मेरा कौन सा चैनल है, बफर चैनल है. ठीक है, इसका नाम क्या दिया हमने, ch. अब इसके अंदर मैंने कितनी साइज है, 4 दिए, क्योंकि इसकी साइज कितनी है, 4. यहाँ पे हमने 4 साइज दिए यहाँ पे. ठीक है, अब साइज 4 है, तो यहाँ पे मैंने पहला आइटम रख दिया यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ पे आ गया. बफर में दूसरा रख दिया 20 आ गया. ठीक है, अब बफर फुल हुआ है क्या, नहीं हुआ है. तो जब तक बफर फुल नहीं होता तब तक ब्लॉक कहीं पे नहीं होगा. ठीक है, तो जैसे भी ये फुल नहीं हुआ है, अब इसको मैं रिसीव इसी के अंदर करूँगा fmt.println, और मैं प्रिंट करूँगा ch को एक बार,
और fmt.println ch को दूसरी बार रन करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर 6 है एंड लाइन नंबर 7 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कोड हमारा लाइन नंबर 1 रन हो गया, लाइन नंबर 2 पे चैनल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रिएटेड बफर चैनल, हमने बफर चैनल यहाँ पे बना लिया। लाइन नंबर 3 के अंदर क्या किया, चैनल के अंदर एक वैल्यू रख दिया हमने। लाइन नंबर 4 के अंदर चैनल के अंदर दूसरी वैल्यू सेव कर दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, अभी चैनल फुल नहीं हुआ है, मतलब कहीं ब्लॉक नहीं होगा, डायरेक्टली नीचे आएगा और प्रिंट एलियन चैनल की वैल्यू पहले रीड किए, तो जो वैल्यू फर्स्ट रखी थी हमने वो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पे आउटपुट में कितना आया है, 10। ठीक है, फिर लाइन नंबर 6 पे दूसरा आउटपुट आया है, मतलब दूसरी 20 वैल्यू रीड हो चुकी है। तो आपका आउटपुट क्या आ चुका है, 10 एंड 20 आ चुका है। ठीक है, तो बफर चैनल का बेनिफिट ये है कि आप सेम थ्रेड के अंदर उसका यूज कर सकते हो, उसके अंदर जब तक फुल नहीं होता तब तक ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, अभी हम ब्लॉकिंग का एग्जांपल लेंगे। ये अंडरस्टूड हुआ एग्जांपल आप सबको चैनल का? यस सर। ब्लॉकिंग केस लिखेंगे, अलग अलग केस लिखेंगे। केस 1 ब्लॉकिंग बफर चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे फंक, अब चैनल क्रिएट करेंगे, ch इज इक्वल टू मेक फंक्शन, और यहाँ पे चैन, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा सेंड करने वाला हूँ, स्ट्रिंग कॉमा, और लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे 3 स्ट्रिंग स्टोर करने वाला हूँ चैनल के अंदर। ठीक है, तो जैसे भी मेरा ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, अब लाइन नंबर 3 के अंदर क्या होगा, मैं चैनल के अंदर डेटा रखूँगा, साहिल ch व्यास। ठीक है, और यहाँ पे ch गंगा। हाँ? आवाज नहीं आ रहा है, हेलो? से बोल रहा हूँ सर, CH में एक के आगे नहीं लिख सकती है कॉमा लगा के? हाँ लिख एक सकते हैं लाइन में कॉमा लगा के, हाँ लगा सकते अलग हैं, अलग कोई स्ट्रिंग। प्रॉब्लम नहीं। कॉमा लगा के लिख, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर जो होता है वो राइट हैंड साइड में 111 एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना एग्जाम्पल। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे चैनल हमने लगा दिया। अभी मैं यहाँ पे रीड करना चाहता हूँ लाइन नंबर 6 के ऊपर, ch fmt.println ch1 ch आपका रिज्यूमे ऐसा बना के दूंगा ना खतरनाक कि साला इंटरव्यूअर देखते ही रह जाएगा यार। जॉब तो मिलने वाली है, टेंशन मत लेना। हाँ चलो, अभी कोड हो गया, तो चलो सबसे पहले लाइन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, चैनल क्रिएट हुआ है। तो जैसे ही चैनल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक बफर चैनल बन चुका है। यहाँ पे कितना कैपेसिटी इसका, 3 कैपेसिटी। ठीक है, तो ये इसको रेफर किया है ch ने, और इसका साइज कितना है, 3, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज दिया है इसका। ठीक है, अब लाइन नंबर 3 में पहला क्या आया है, इसके अंदर साहिल। लाइन नंबर 4 में कौन सा आया है, विहास। और लाइन नंबर
5 पे क्या आया है, गंगा। ओके, अब ये इतना हो चुका है। अब बफर यहाँ पे डेटा आ चुका है, ये ब्लॉक हुआ है, नॉट ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे बफर फुल हो चुका है, यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है। बफर यहाँ पे फुल हुआ है ना, क्योंकि जैसे ही मैं तीसरा आइटम रखता हूँ तो बफर फुल है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये ब्लॉक होने के बाद ये नीचे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे रीड वैल्यू होगी नहीं बफर खाली होने के लिए, तो ये इनफाइनाइट ब्लॉक चला जाएगा। अंडरस्टूड? ब्लॉक कैसे होता है ये। अब इसको निकालने के लिए हम दूसरा गो रूटीन के अंदर इसको निकाल सकते हैं, दूसरे गो रूटीन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, बफर ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉकिंग एग्जाम्पल इस लेंगे, ब्लॉक सेंडर यूजिंग बफर्ड चैनल। एग्जाम्पल है सेंडर ब्लॉक हुआ है बफर चैनल के में। समझ आया ये सिनेरियो, समझ आया ब्लॉक कब होगा ये। आप एग्जाम्पल लेंगे, रिसीवर कैसे ब्लॉक होता है आप देखेंगे अभी। ठीक है, केस सेकंड, ब्लॉक रिसीवर यूजिंग बफर चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखता हूँ, फंक चैनल क्रिएट करेंगे, ch::make चैनल, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, सेम एग्जाम्पल लिखूंगा, कॉमा 3, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। ठीक है, तो चैनल के अंदर हम रखेंगे साहिल गंगा दीपक। ठीक है, अब इसको फुल नहीं करेंगे, यहाँ पे आया तो फुल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, fmt println ch, पहला रीड किया, fmt.println दूसरा ch रीड किया, fmt.println तीसरा ch रीड किया, और फिर हम चैनल के अंदर डेटा रख रहे हैं शीतल। सर वरती तो दोनच ch मध्ये व्हॅल्यू असाइन केल्यानंतर 3 कसे प्रिंट करायचे। हाँ ना, मैं बोलता हूँ ना आपको। ठीक है, अब ये एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे fmt.println ch। ओके, अभी चलो लाइन नंबर 1 रन हो चुका है, बफर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बफर चैनल बन चुका है हमारा। कितना साइज है इसका, 3 साइज है। ठीक है, अब ch और साइज इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन नंबर 2 रन हुआ तो बफर के अंदर क्या चला गया, पहला साहिल चला गया, फिर गंगा चला गया। अब चैनल फुल है क्या, यहाँ पे नहीं है, फुल नहीं है। तो फुल नहीं है तो फिर ये ब्लॉक कहीं पे नहीं होगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रीड हो चुका है पहला, तो पहला आउटपुट क्या आ चुका है, साहिल आया है। फिर यहाँ पे दूसरा रीड हो चुका है, क्योंकि ये कितना भी रीड करेगा, क्योंकि इसको पता है साइज 3 है, तो मैं 3 बार रीड कर सकता हूँ इसको। ठीक है,
3 बार, और फिर उसके बाद भी मैं रीड कर रहा, उसके बाद भी उसको रीड कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो 3 बार या मल्टीपल बार भी मैं इसको रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड रीड करेगा तो गंगा आउटपुट मिलेगा। अब ये थर्ड बार रीड करेगा तो बफर के अंदर वैल्यू नहीं, मतलब बफर अभी क्या हुआ है, एम्प्टी हुआ है। जैसे 2 वैल्यू निकल चुकी है यहाँ पे, अब बफर एम्प्टी हो चुका है। तो जैसे ही बफर एम्प्टी होता है तो ये रिसीवर यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, फिर रेस्ट ऑफ द लाइन कोड आपका नहीं रन होगा। कब तक ब्लॉक होगा, जब तक ये बफर के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये ब्लॉक ही होगा। जब भी वैल्यू आएगी तब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और वो नीचे चला जाएगा। अंडरस्टूड कैसे ब्लॉक होता है ये रिसीवर? Yes, sir. शीतल, तर आपण व्हॅल्यू करत असतो तेव्हा व्हॅल्यू त्याच्यामधल्या बाहेर हाँ, निघत बफर असतात म्हणले का? बफर रीड करने मतलब क्या है, उसकी बाहर वैल्यू निकल जाती है ना, उसके बाहर रीड हो चुका है मतलब उसके वो बाहर निकल, एम्प्टी होता है। एम्प्टी क्यों होता है वो, मतलब वैल्यू निकल रही है ना उसके बाहर। हाँ सर, अंडरस्टूड? या गुड। यस सर। अब इसको हम मल्टीपल गो रूटीन के अंदर देखेंगे, बफर, हाउ टू यूज बफर इन मल्टीपल गो रूटीन, ठीक है। मतलब अभी हमने तो एक सिंपली ये कीज के अंदर बफर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल केस के अंदर इस करेंगे, केस 3। ठीक है, अभी हम लेंगे मेन फंक फंक्शन मेन, ठीक है। तो अभी चैनल बनाएंगे हम, चैनल, ये बफर चैनल है, मेक। अब जैसे मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ इंटीजर, इंटू वाला चाहता, और इसके अंदर मैं 3 वैल्यू रखना चाहता हूँ, ठीक है, लाइन नंबर 1। और फिर हम यहाँ पे जैसे गो रूटीन स्टार्ट कर देंगे, गो, या फिर हम इसको डायरेक्टली वेट ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। हियर वेयर वेट ग्रुप सिंक डॉट वेट ग्रुप। अब जैसे भी वेट ग्रुप बनाया है, डॉट ऐड करेंगे एक गो रूटीन, और गो का इस्तेमाल करके गो रूटीन स्टार्ट करेंगे, फंक वेट ग्रुप सिंक डॉट वेट ग्रुप। डेफर वेट ग्रुप डॉट डन। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा रखेंगे बफर के अंदर। तो जैसे बफर के अंदर डेटा रखेंगे यहाँ पे चैनल 10 20 30, ठीक है। तो चैनल के अंदर हमने 3 रख दिए यहाँ पे, और ये हमारा डेफर कॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना है एम्परसेंड वेट ग्रुप, ठीक है। अब फाइनली अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे यहाँ पे, ch ठीक, इतना करने से ch कॉमा ch, ठीक है। हमने इसको 3 बार क्या किया है, रीड किया है। और फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेट ग्रुप डॉट वेट, और यहाँ पे fmt डॉट println डन, ओके। तो ये हमारा कोड है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8,
लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 12, 13। ठीक है, तो ये हमारा अभी कोड है। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर जब भी रन होता है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, हमारा बफर क्रिएट हुआ है। कितना वैल्यू है उसका, साइज है 3 साइज है बफर का। ठीक है, तो जैसे भी हमने अवेट ग्रुप बनाया है, ऐड किया, जैसे हमने गो रूटीन बनाया है, यहाँ पे गो फंक्शन कॉल किया है, तो जैसे भी गो फंक्शन कॉल हुआ डायरेक्टली ये जंप कर कहाँ पे होगा, लाइन नंबर 10 पे जंप हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है, अभी नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बफर क्या है, अभी एम्प्टी है, बफर एम्प्टी है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, जैसे भी ये गो रूटीन के अंदर चला जाएगा, पहले डेफर कॉल करेगा, फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे चैनल के अंदर कितना गया, 10, फिर कितना गया 20, और फिर कितना गया 30। ठीक है, तो जैसे 30 गया तो चैनल अभी यहाँ पे क्या हो गया, फुल हो चुका है। और जैसे भी फुल हुआ यहाँ पे चैनल फुल है, तो ये ब्लॉक हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और ब्लॉक हो चुका है तो फिर यहाँ पे जैसे भी बफर के अंदर डेटा आ चुका है तो ये पहले CH वाला प्रिंट करेगा। यहाँ पे पहला प्रिंट हो चुका है 10, फिर प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ये निकल गया यहाँ से, फिर प्रिंट हो गया 20, ये वाला ये निकल गया यहाँ से, और फिर प्रिंट हुआ ये 30, ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब जैसे भी बफर एम्प्टी हुआ है, अभी बफर एम्प्टी हो चुका है, जैसे भी एम्प्टी हुआ तो ये ब्लॉक खुलेगा, और ये खुलने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट होगा ये डेफर को कॉल करेगा, और जैसे भी डेफर डन करेगा ये वेट मेथड जो है ये यहाँ पे ये अनब्लॉक होगा, अनब्लॉक, और फाइनली आउटपुट डन प्रिंट होगा यहाँ पे। अंडरस्टूड किस तरीके से हो रहा है? Yes, sir. कळालं नाही सर मला. क्या नहीं समझा? सर इथं तर सेंटर तर ब्लॉक झालाय ना सर, फुल झालाय ना. ध्यान दो, देख, ठीक है, लाइन नंबर 4 पे क्या हो रहा है, गो रूटीन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये गो रूटीन बन चुका है। फीडबैक गंगा, फास्ट फीडबैक, लाइन नंबर 4 पे क्या हो रहा है, गो रूटीन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, यस सर. स्टार्ट हुआ है। हाँ जैसे भी स्टार्ट हुआ है तो ये मेन थ्रेड डायरेक्ट जंप कहाँ पे करेगा, लाइन नंबर 10 पे करेगा, वेट नहीं करेगा गो रूटीन का रन होने तक। कहाँ पे करेगा, लाइन नंबर 10। इतना तो पढ़ा है हमने गो रूटीन में। तो लाइन नंबर 10 पे क्या है, हम चैनल को रीड कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अब ये रिसीव होगा क्या, नहीं होगा, ये ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बफर क्या है, एम्प्टी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, बिहेवियर में क्या लिखा था, द रिसीवर इज ब्लॉक्ड ओनली व्हेन द बफर इज एम्प्टी, लिखा था ये। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे रीड तो कर रहे हैं यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे, लेकिन बफर के अंदर अभी कुछ डेटा है नहीं एम्प्टी, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इतना सा ध्यान में आया? आया, ठीक है। यस सर. अब ये ब्लॉक हुआ तो तब ये गो रूटीन अपना काम शुरू कर रहा है। तो पहले इसने क्या किया, चैनल के अंदर कितना रखा, 10, मतलब 10 आ जाएगा बफर के अंदर। इतना समझ में आया? फिर नेक्स्ट लाइन पे कितना आया, 20 आया, इतना समझ में आया? फिर 30। यस सर. ठीक है, अब बफर यहाँ पे फुल हुआ है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या दिया था बिहेवियर में, लाइन नंबर 1, द सेंडर इज ब्लॉक ओनली व्हेन द बफर इज फुल। तो सेंडर यहाँ पे कौन है, ये गो रूटीन है हमारा, ये बफर डेटा सेंड कर रहा है।
तो अभी हमारा बफर फुल हो चुका है, यस फुल हो चुका है ना, क्योंकि तो यहाँ पे ये यस सर, ब्लॉक हो फुल हो जाएगा, चुका अब है। ये इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इतना ठीक है। अब ये लाइन नंबर 10 वाला क्या करेगा, अब इसको डेटा मिल गया क्योंकि बफर के अंदर डेटा आ चुका है ना, तो पहला चैनल के अंदर उसको डेटा मिल चुका है 10, तो ये प्रिंट क्या करेगा इसको 10, इतना समझ में आया। हाँ, फिर ये यस सर। चैनल रीड करेगा 20, क्योंकि ये निकल गया ये 20, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया है 20, ये निकल गया, और फाइनली यहाँ पे क्या आया है 30, तो ये 30 निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब अभी बफर एम्प्टी हो चुका है हमारा, ठीक है। हमने तीनों डेटा रीड कर लिया है, और फिर जैसे भी डेटा रीड कर लिया हमने तीनों, तो बफर में डेटा, बफर अब फुल है क्या, बफर फुल नहीं है, तो फुल नहीं तो फिर ये नहीं। ब्लॉक निकल हटेगा, क्योंकि ये ब्लॉक कब तक रहेगा जब तक बफर फुल है, लेकिन अब बफर तो एम्प्टी हो चुका है ना, तो ये ब्लॉक निकल गया, और जैसे भी ये ब्लॉक निकल गया तो ये टर्मिनेट हो गया फंक्शन यहाँ पे लास्ट में आके, और जैसे भी टर्मिनेट होगा तो डेफर कॉल होगा, डेफर में डन हुआ है, मतलब क्या हुआ है, वेट ग्रुप क्या करेगा, अपना वेट निकालेगा यहाँ से, हटा देगा इसको, तो ये अनब्लॉक करेगा यहाँ पे, और जैसे भी अनब्लॉक हुआ तो नेक्स्ट लाइन जो है डन, वो डन रन होगा आपका। समझ लो, ये तो वेट ग्रुप तो पहले ही यस सर। पता है हमें कैसे रन होता है, इसका तो कोई झमेला होना ही नहीं चाहिए आपको कि वेट ग्रुप कैसे रन हो रहा है, वो तो हमने इसके लिए ऊपर लेक्चर भी स्पेंड किया है। ये समझ में आया एग्जांपल ये किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखना है बफर के ऊपर, बफर एम्प्टी है तो फिर ब्लॉक खुलेगा सेंडर का, बफर फुल है तो ब्लॉक रखेगा, और रिसीवर क्या करेगा, बफर जब तक एम्प्टी है, मतलब जब तक डेटा है तब तक रीड करेगा, जब तक एम्प्टी मिलेगा तो वो बफर ब्लॉक हो जाएगा। दिक्कत है किसी को इसके अंदर, गंगा नो एनी सर। डाउट? सर लाइन नो नंबर सर। 8 ब्लॉक, लाइन नंबर 8 पहले ब्लॉक होगी ना, पर उसको हमने मेन थ्रेड में रिसीवर यूज हाँ, किया, तो इसलिए बफर यहाँ अनब्लॉक पे होगा देखो, ना वो। ये ब्लॉक कब होगा, कब होगा, बफर फुल होगा तब। तो पहला बफर के अंदर CH ने 10 रखा है, दूसरा 20 रखा है, और तीसरा जैसे भी 30 रखा है, तो बफर क्या हुआ, फुल हुआ ना, 3 आइटम थे तो 3 ही आइटम हो गए, तो फुल होने के बाद यस ये डायरेक्टली ब्लॉक होगा ये। अब ये अनब्लॉक कब होगा, जब इसमें की वैल्यू हटेगी, तो ये वैल्यू कहाँ पे हट रही है, यहाँ पे तीनों इसको रीड कर रहे, तो तीनों ने इसको रीड किया तो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये फिर अनब्लॉक होगा, और फिर यस आगे का सर। एग्जीक्यूशन चलेगा। ओके ओके, समझ आया। इसलिए मैं ये विजुअलाइज करके दे रहा हूँ आपको, ये बफर या ये एग्जांपल ऐसा किसी आपको बाहर मिलेगा नहीं ये बफर का, ये यहाँ पे आपको समझ में आया तब ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में बफर में क्या हो रहा है। तो और ये सब कुछ बफर के ऊपर डिपेंड है। चलो फीडबैक दो जल्दी, समझ में आया या नहीं आया फटाफट। गंगा डाउट क्लियर? यस सर। कल Yes, फिर sir. हाँ सर हे रुटीन असल्यामुळेच हे वेगवेगळे गो रुटीन असल्यामुळेच हे हाँ खालचं एक्झिक्यूट होत आहे ना साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं ना MT.c वो, इसका कोई सीक्वेंस गो रूटीन अलग हो गए, मतलब अलग अलग एग्जीक्यूशन हो गया। जरूर नहीं कि आप सीक्वेंस में सारी चीजें रन हो, पहला रन होने के बाद अब अलग अलग है, ये अपनी मनमानी से रन करेगा, ये अपनी मनमानी से रन करेगा। ठीक है, तो शुरू में गो रूटीन क्या पढ़ रहे हैं हम, गो रूटीन का मतलब ये है कि दो फंक्शन कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं एक साथ, without waiting for to complete the work of the other statement। नॉर्मली हम लाइन बाय लाइन रन करते तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरी स्टार्ट होती है, लेकिन कंकरेंसी में ऐसा नहीं होता है। जब जिसको स्टार्ट कर दिया वो खुद अपना काम करेगा और हम नीचे जाएंगे, इमीडिएटली नीचे के कोड एग्जीक्यूट करेंगे। यस यस आप सर। गलती वही यहीं पे कर रहे हो, क्योंकि आपको शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कॉन्करेंसी समझ में आया है। कॉन्करेंसी का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है आपको। कॉन्करेंसी का मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये गो रूटीन स्टार्ट कर दिया, देखो लाइन नंबर जब
अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये होगा। अब मैंने गो का इस्तेमाल करके बनाया, मतलब ये नया गो रूटीन स्टार्ट हो गया। जैसे भी स्टार्ट हो गया, अभी ये इसका वेट नहीं करेगा कॉल होने तक, डायरेक्टली ये लाइन नंबर इस पे आएगा, ठीक है। और ये अपना फिर ये खुद से अपना अपना रन होगा साइमल्टेनियसली, ये रन कर रहा है तब तक ये भी रन करेगा अपना। इसी को कॉन्करेंसी बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो here guys, do you want to continue or stop right now? Stop right sir. now. शीतल, डाउट है क्या? कोई पूछो, डाउट अगर है तो पूछो, क्या कुछ प्रॉब्लेम है तो। नाही सर, काहीच डाऊट नव्हता, फक्त मी सांगत होते की ती हाँ, तो त्याच्यामुळे वही, सक्सेसफुल क्योंकि एक्झिक्यूट सक्सेसफुल होत होने के लिए आहे। क्या है कि एक थ्रेड ब्लॉक हो रही है, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए। वो खुद को अनब्लॉक कैसे करेगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ने की कोई चांस ही नहीं उसको, ठीक है। तो जैसे कि हमारे दोनों हाथ लॉक हो चुके हैं, तो वो खोलने के लिए कोई दूसरा ही आदमी चाहिए, हम नहीं खोल सकते आप, ठीक है। तो कॉन्करेंसी में यही होता है कि दो अलग अलग, एक थ्रेड रन हो रही है, उसके साथ दूसरी रन हो रही है, वो भी साइमल्टेनियसली प्रोग्राम को रन कर रहा है। एक के अंदर ब्लॉक हो गया तो दूसरा तो ब्लॉक नहीं है ना, तो वो उसको ब्लॉक खोलने का कोड रन कर सकता है, ताकि वो ब्लॉक खुल जाए उसका। सो दिस इज तो यही मेन था आपका चैनल के अंदर की जो बफर एंड अनबफर चैनल। अब इसके अंदर बहुत इजी है। और रही बात अभी एक को सेलेक्ट स्टेटमेंट आपका इसमें अंदर एक यूज़ होता है कि यूजिंग सेलेक्ट हम चैनल को कैसे रीड करें। बस ये कंसेप्ट हो गया, आपका गो रूटीन चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अब बाकी के टाइप्स जो है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे खाली ये जो कॉन्सेप्ट था बफर चैनल और अनबफर चैनल, यही दो डिफ़िकल्ट था, ठीक है। अब आपका ये क्लियर हो चुका है, बफर भी अनबफर भी क्लियर हो चुका है, चैनल किस तरीके से बनाते हैं ये सारी चीज़ें हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने लॉकिंग देखा था या लॉक, हाँ लॉकिंग भी देखा था, है ना। म्यूटेक्स देखा था, म्यूटेक्स, हाँ वो भी हमने देखा था। Yes. तो लॉकिंग भी, सिंक्रोनाइजेशन भी हो गया और ये भी हो गया। अभी कल लास्ट लेक्चर होगा हमारा चैनल का, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। बस उतना हो गया, चैनल ख़त्म। आप कोई भी बड़ा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी बड़ा आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे कोई एक चीज़ होगी एटॉमिक ऑपरेशन बोल के, तो एक बार वो मैं बताऊँ, वो भी क्या है 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा एटॉमिक ऑपरेशन का, ठीक है। तो उसके बाद कोई है नहीं आपका। तो ये गो रूटीन चैप्टर हमने सक्सेसफुली पढ़ा है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर सारी चीज़ें हमने बहुत डीप लेवल तक देखी है, बेसिक लेवल पे देखी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कंकरेंसी के रिलेटेड गो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसके आगे कुछ है ही नहीं अभी है थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी नाद में मत जाओ, क्योंकि वो सीखोगे तो है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो उतना एडवांस तो आपको कोई पूछेगा नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो कोई जॉब के लिए ये बहुत, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी दिखा और ये दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतना इसके लिए हो चुका है बेहतर तरीके से। सो टुमारो विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑन द गो रूटीन विथ प्रैक्टिकल एंड रिमेनिंग टॉपिक। ओके, 1 आवर में प्रैक्टिकल हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। अभी बाकी कुछ है नहीं इतना। उसके बाद प्रैक्टिकल ले लेंगे कल, जितना अभी हुआ है उतना, और प्रैक्टिकल लेने के बाद हमारा गो रूटीन चैप्टर इज फिनिश। सो हमारा टोटली गो लैंग्वेज फिनिश हो चुका है। ओके, अब बाकी है फ्रेमवर्क, सर्वर साइड, डेटाबेस इंटरेक्शन, रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, GoRM, ये अभी बाकी चीज़ें। और ये बहुत अभी आसान है, ये डिफ़िकल्ट था। अभी इसका फटाफट यूज़ करना है, खाली बस एपीआई लेना है, कॉल करना है, रिजल्ट देना है, बस। अभी कुछ बाकी नहीं है लॉजिकली। सो यू हैव टू प्रिपेयर। और अगर आपको जॉब को ट्राई करना है तो इसके ऊपर भी कर सकते हो, सफिशिएंट है जॉब के लिए भी, ठीक है। सिर्फ डेटाबेस इंटरेक्शन एक बार हो गया तो आप अभी भी जॉब के लिए रेडी हो गोलैंड के लिए। तो करना है तो देखो, मैं रिज्यूमे बना के देता हूँ आपको, और ये जितना पढ़ा है हमने, रिज्यूमे आपकी डिटेल तो सेंड किए मुझे, बेहतर तरीके से रिज्यूमे बना के दूंगा, और उसी के हिसाब से फिर एक बार प्रिपरेशन लेंगे सारा, और डेफिनेटली गो अहेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरव्यू देते रहिए, और हमारा तो चलता रहेगा ये सिलेबस, ठीक है।